Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Sonam. Are we audible? Yes, sir. Okay. हमारे साथ आज डॉक्टर राकेश चोपड़ा जी हैं। सर का वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, पीएसयू में हो, पीएससी में हो, टीचिंग में हो, और सबसे बड़ी बात, सर अपने लॉ फैकल्टी से ही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। राकेश चोपड़ा सर हैं आज हमारे साथ। सर ये सोनम है कैंडिडेट। Good morning, Sonam. Good. I'm fine, sir. Thank you, sir. Sonam, you are trying, joining as a public prosecutor or assistant public prosecutor. What a prosecutor is? Sorry, sir. I'm not able to. Prosecutor कौन होता है? Prosecutor की जरूरत क्यों पड़ती है? सर पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट के बिहाफ में जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है सर। What is the purpose? What is the meaning of the word called prosecutor? सर prosecution means sir representing the state in front of the court. It is the prime duty of public prosecutor, sir. Okay. Do you have any idea about the procedure in which the law is laid down for the prosecutor, the public prosecutor? Sir, your voice is cracking, sir. Are you aware about the provisions in the CRPC wherein something is mentioned about the public prosecutor? Yes, sir. Section right, sir. Sir, section 2 clause U of the CRPC talks about the public prosecutor, and thereafter, sir, section 24 of the CRPC talks about public prosecutor, and section 25 talks about assistant public prosecutor, sir. What are the essential qualifications required for a assistant prosecution officer under the CRPC? Sir, first of all, he must have a law degree and then 7 years of experience of advocacy. Or assistant prosecution officer? Sorry, sir. Sir, assistant public prosecutor, sir, उसको state appoint करता है एक पैनल के थ्रू, सर। एक पैनल में से, और उसके पास सर ऐसी कोई प्रैक्टिस की कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सर। लॉ की डिग्री की होनी चाहिए। ओके सोनम, अपने बारे में कुछ बताइए। आपकी हॉबीज क्या है, आपने लॉ कहाँ से की है, और सारी चीजें आप अपना एक ब्रीफ इंट्रो दीजिए। सर बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, इन उत्तराखंड फ्रॉम कालाडूंगी व्हिच इज इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, सर। मेरी आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम कालाडूंगी इटसेल्फ एंड देन आई वेंट टू दिल्ली and for my higher education I have done my graduation and degree of law from Delhi University, sir. Delhi University, which batch? So 2018 law degree, sir. फैमिली में कौन-कौन आपकी? सर फैमिली में, हाँ जी सर मैं, मेरी माता जी, मेरे पिता और मेरी 3 बहनें और, सर। पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चौकीदार थे, अब रिटायर हो चुके हैं। कौन से डिपार्टमेंट में? सर वो डिपार्टमेंट तो नहीं होता, सर। चौकीदार थे, सर। ही वाज अ गेटकीपर, सर। No, because there are various departments including the central university. Sir, I think it comes under non-teaching. I know that because because some people are there in the central university, some are with the faculties or the departments. Anyway, very nice. Just tell us something about the role of the APP. What are the two major areas in which the entire role can be divided? Sir, I think during the investigation and during the trial, sir. What is the difference between the investigation and trial? Sir, investigation is done for collecting evidences by a police officer, and sir, trial starts after framing of charges, sir. क्या मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? नो सर। ओके कैसे आप इस पॉइंट को सपोर्ट करेंगे? सीआरपीसी के अंदर कोई प्रोविजन बोलता हो, क्या कोई कुछ है तो आप बताइए एक बार। Sir, section 2H definition of investigation itself says that investigation is done by a police officer, excluding the magistrate. ठीक है, क्या पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है।
क्या पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई और कर सकता है? Sir, basically it's a duty of police officer only, and apart from that, sir, I think a private person can do as well. In कैसे कर certain, सकता है? मगर उसको ऑथराइजेशन कहाँ से मिलेगी? पुलिस ऑफिसर की प्राइमरी ड्यूटी है, मगर क्या प्राइवेट ऑफिसर क्या प्राइवेट पर्सन है, कोई प्राइवेट डिटेक्टिव है, अगर वो अपने आप से उसमें इन्वेस्टिगेशन करने लगे तो कोर्ट के सामने वो एडमिसिबल होगी। बात ये है, आप या तो ये बताइए कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कर सकता है, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? क्या किसी अप्रूवल वगैरह की जरूरत होती है? सीआरपीसी कुछ कहता है इस बारे में? I'm sorry, sir. Right now, I'm not able to recall that. आप जिस इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू खत्म होने के बाद एक बार उस इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन को देख लीजिएगा, उसी में ही लिखा हुआ है। Yes, sir. It is written done by a police officer or any other person. Who is authorized by a magistrate? Authorized by the magistrate. हाँ, ये नहीं बताया आपने। I'm sorry, sir. Let us come to Uttarakhand because you belong to Uttarakhand and we are talking here on the subject of Uttarakhand. Are you aware something about the Uttarakhand and with regard to the Nainital High Court observations as well as the Supreme Court law laid down with regard to the investigation process? I'm sorry, sir. Right now, I'm not able No to. worries, no worries. Do you have any idea about how the people in Uttarakhand in hilly regions, if there is some crime committed in the hilly regions, how the investigation process takes place? Right, sir. Sir, in Uttarakhand, almost 60% of the area comes under the revenue police. So, revenue police is when the Britishers were in Uttarakhand. तो सर क्योंकि हिली एरिया में पुलिस स्टेशन को एस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल था और उस वक्त वहां पे क्राइम रेट भी बहुत कम था, तो सर इस वजह से वो जो डिपार्टमेंट था सिविल पुलिस को ना देकर कि सर रेवेन्यू को दे दिया गया, सर जैसे पटवारी, कानून एक्सेट्रा। बट सर रिसेंटली आफ्टर द अंकिता भंडारी मर्डर केस ये डिमांड उठी है कि रेवेन्यू पुलिस को खत्म कर देना चाहिए और सब जगह जो नॉर्मल पुलिस रेगुलर पुलिस सिस्टम है उसको एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। I'll just add to it, this demand was there in 2000, this demand was also in 2007, and this demand was also in, after this 2021 Ankita murder case. But what has happened is, there is a famous case on the subject called Sundarlal case, wherein Nainital High Court has already declared long back that the investigating process which is done by the revenue officer should be conducted by the police officer. Kindly see through this judgment, this will help you. सोनम, पुलिस रिमांड की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या टाइमलाइंस हैं और कौन से प्रोविजन के अंदर दिया हुआ है, एक बार बताइए। सर पुलिस रिमांड को सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी में डील किया गया है सर। सर पुलिस रिमांड 15 दिन से ज्यादा की नहीं हो सकती। अगर पुलिस ऑफिसर को रीजनेबल कारण लगते हैं आगे और इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो सर वो जुडिशियल रिमांड के लिए अप्लाई कर सकता है। सर अगर कोई भी केस का टाइम शुरू कब से होगा? सर जैसे ही जो एक्यूज्ड है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा या जिस मोमेंट से उसको अरेस्ट किया जाएगा? नो सर, जब से उसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ओके, फर्स्ट टाइम जब प्रोड्यूस किया जाएगा उसके 15 दिन। यस। ओके, आर यू करेक्ट ऑन दिस? यस, एज पर माय लिमिटेड नॉलेज, यस। ओके, ये बताइएगा कि अगर कोई केस पुलिस रिपोर्ट पे फाइल होना है तो उसका कॉग्निजेंस कहाँ लिया जाएगा? सर अगर कोई भी केस पुलिस रिपोर्ट पर फाइल होता है तो सर उसका कॉग्निजेंस सेक्शन 190 क्लॉज बी ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत लिया जाता है। ओके, पुलिस डायरी की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए और क्या एज अ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर पुलिस डायरी को यूज कर सकता है जब ट्रायल के दौरान? सर पुलिस डायरी अंडर सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी में मेंशन किया गया है। सर पुलिस डायरी में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर जो भी ऑब्जर्व करता है या जो भी डे टू डे बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन करता है उसको वो एक डायरी में मेंटेन करता है, जिसे पुलिस डायरी कहा जा सकता है। सर जहां तक एक्यूज की बात है वो पुलिस डायरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर सर प्रोसिक्यूशन का इस रिगार्डिंग प्रोसीजरल के एस्पेक्ट है ऑफ दैट आई एम नॉट अवेयर सर, बट
If you allow me to guess, क्या कंसर्न पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उस पुलिस डायरी को यूज कर सकता है, और एविडेंस का कौन सा रूल कहता है इस बारे में? sir, under section 159 of Evidence Act, he can use that diary to refresh his memory. Okay. Just one thing, that so far as the investigation is concerned, what is the role of electronic evidence and their admissibility? सर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आईटी एक्ट 2000 के ऐड होने के बाद एविडेंस एक्ट में ऐड किए गए थे सर। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के अंतर्गत आते हैं सर। इनकी एडमिसिबिलिटी के रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो सर सेक्शन 65A एंड सेक्शन 65B में शायद डील किए गए हैं। शायद नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बी कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू से। So far as what is the difference between section 65A and 65B of Evidence Act? सर सेक्शन 65A हमें लीड करता है सेक्शन 65B की तरफ कि एडमिसिब, वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल है और उनकी एडमिसिबिलिटी का जो प्रोसीजर है वो 65B के B में दिया हुआ है सर। So what is the procedure under 65B? Sir, it's very complicated, but No, it's very simple. We know it. राइट सर। सर 65B में कहा गया है अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको आपको एज एन एविडेंस प्रूव करना है, क्योंकि सर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस तो है नहीं सर, तो वो सेकेंडरी एविडेंस की तरह यूज किया जाएगा। और जब उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा सर तो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट जो ऑफिसर है सर उसके थ्रू दिया जाएगा, तभी वो जो एविडेंस है वो एडमिसिबल होगा। So what is the law laid down in this? There are 3 Supreme Court judgments on this subject. And what is your understanding on the law laid down by the apex court? There are 3 beautiful judgments on this subject. I'm sorry sir, I'm not able to. No worries. Then let us know about the police reforms, because investigation is very, very important. What are the various committees formed for the police reforms in the country? I'm sorry sir. No worries. Are you aware about the Malimat committee report? Yes sir. What was there? Sir, in Malimat committee report, there were various suggestions laid down by the committee, and which kind of suggestions? Sir, specifically plea bargaining is plea bargaining was one of the aspects. Yes sir. I'm aware of that. What are the other observations or the suggestions or the guidelines given by this committee? What about Justice J.S. Verma's committee report? Yes sir. Sir, Justice J.S. Verma committee. May I sir? Please. थैंक यू सर। सर जस्टिस वर्मा कमेटी जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट सर 2013 में आई थी आफ्टर द निर्भया रेप केस सर। इसमें रेप की जो डेफिनेशन है उसमें काफी कुछ अमेंड किया गया था, या फिर ये कह सकते हैं कि पूरी सब्स्टिट्यूट की गई थी, और बहुत सारे अदर रिफॉर्म्स भी सजेस्ट किए थे सर, जैसे कंसेंट के रिगार्डिंग जो रिफॉर्म था, रेप की डेफिनेशन के रिगार्डिंग जो था, और उसके अलावा which year जस्टिस J.S. Verma कमेटी came in? सर 2013। बच्चों के खिलाफ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं, अभी कौन सा लॉ ऑपरेशन में है इन सारी चीजों को देखने के लिए? सर पॉक्सो। आप बताइए क्या है इस लॉ की खूबियां? सर ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है सर, 2012 में आया था। सर इसमें पहली बार ये अपने आप में एक पहला ऐसा एक्ट है जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और इस तरीके की डेफिनेशंस को बताता है सर। इसके अंदर क्या पोक्सो एक्ट के अंदर कोई फीमेल ऑफेंडर हो सकती है? यस सर, बिल्कुल हो सकती है। ओके, ठीक है सर। What were the amendments in the Juvenile Justice System Act during this the case of Nirbhaya? Because you said Nirbhaya, so it just stuck in my mind. What were the amendments made in the Juvenile Justice System Act of 2015? The amendment was done way back in 2020. What was that? Sorry sir, right now I'm not able No to worries. recall. No worries. Thank you. Thank you very much. I think it was a brilliant discussion. Thank you. सर कोई फीडबैक आप दीजिए, बताइए। If you ask me the feedback, beta, you are very confident, you are very clear,
and be with the pride whatever our parents are, right? Yes, sir. Because Yes, sir, I am. because when we say because what we are only because of our parents, right? Yes. हमारे पेरेंट्स चाहे कुछ भी थे, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, हमें इतना सक्षम बनाया। आज हम Right, sir. इस पोजीशन पे हैं कि हम आयोग के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं और किसी पब्लिक अपॉइंटमेंट में जा रहे हैं। और ये बहुत Right. बड़े प्राउड की बात है कि आपके फादर चौकीदार थे, मगर उन्होंने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया कि कोई ये ना कह सके Yes. कि इनकी फैमिली में कोई नहीं पढ़ा है। आपको इसी पे एक Right. एग्जांपल देता हूँ। अभी जो यूपीएस के चांसलर बने, पहले वाइस चांसलर थे, हिज फादर वाज ए ट्रेन ड्राइवर एंड ही सेज विद ए वेरी प्राइड, Yes, sir. I am very हमारे proud of सामने it, sir. कोयला डालते थे और वही गाड़ी चलाते थे। He was in Indian Navy and right now he's a chancellor of a university. The second Sir, if you point- allow me, I would like to say one thing, sir. जी। Sir, I used to say to father this as well कि मेरे फादर हमेशा गेट के बाहर खड़े रहे, पर उन्होंने हम सबको गेट के अंदर बिल्कुल, बड़े-बड़े बहुत बहुत बढ़िया। This is what you should say. Yes. My father role was to watch others and make sure while watching other from the not to enter inside the official premises, allowed the family well within itself. So then Yes. then the other will be able to ask what was his profession. Yes, sir. सोनम, मैं इस पे कुछ एड ऑन करना चाहूंगा रिगार्डिंग योर पर्टिकुलर फीडबैक कि पुलिस रिफॉर्म की सर ने बात की, मलिमथरी कोर्ट कमेटी देखिए, प्रकाश सिंह का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 2006 का केस है बेटा, उसको आपको एक बार देखना ही पड़ेगा। रीजन ये है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड पुलिस एक्ट आ रहा है और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि उत्तराखंड कहाँ से आया, यूपी से आया, तो यूपी के अंदर अगर कोई केस लॉ है पुलिस रिफॉर्म्स पे तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। प्रकाश सिंह के केस को बिल्कुल देखिएगा, ट्रायल प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्टिगेशन के जब मैंने आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछा तो उसमें आप थोड़ा सा, अगर आपने पढ़ा है तो बी कॉन्फिडेंट कि बोलिए सर एक प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, बट ही शुड बी ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। उसमें क्या है कि काफी कुछ उत्तराखंड पुलिस एक्ट व्हिच केम इन 2008 that has already been incorporated some of the recommendations of the police reform. However, there is a justice report, you can note down this justice report by Tata in 2020 and wherein you can see lot of observations about Uttarakhand, and just share with you, if the DGP of Uttarakhand is sitting, I do not know, he is from Sonipat, and he would prefer that if your language of communication is English, it is better. Although हिंदी को बुरा नहीं मानते क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करोगे। पर्सनल फ्रंट पे आपसे जो पर्सनल सवाल पूछे गए उन पे आज आपने बहुत अच्छा दिया, आपने पूरा अपना कॉन्फिडेंस जैसे लास्ट टाइम मेंटेन करके रखा, माइल्ड स्माइल जो एक इंटरव्यू को रखनी चाहिए, वो सारी चीजें इस बार भी आपने बहुत अच्छे से मेंटेन की। आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और रिफाइन कीजिए कि जहां आपकी अभी थोड़ी सी और कमी रह रही है उन चीजों को और अच्छा कीजिए, ट्रायल प्रोसेस को बिल्कुल घुट जाइए, ठीक है सोनम? विश यू ऑल द बेस्ट।